लास्ट कौन सा ड्रग पढ़ा था? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, है ना? सो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करते हैं। कोलिस्टिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हम डिस्कस करेंगे। कोलिस्टिन की बात करें, सो कोलिस्टिन स्टार्ट करते हैं। कोलिस्टिन की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो आपका रहेगा पॉलीपेप्टाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। पॉली मींस मल्टीपल एंड पेप्टाइड मींस पेप्टाइड बॉन्ड जो हम पढ़ते थे। सो इन दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स वी हैव अ मल्टीपल पेप्टाइड चेन और द पेप्टाइड बॉन्ड। इट इज वेरी इफेक्टिव। क्या करें? ये इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, बंद हो जाते हैं। अब ये नहीं चल रहा है, बोला नहीं चलेंगे। So it is very effective and it's a type of bactericidal group of drug. Bactericidal means the antibiotic which kill the bacteria. कल पूरा concept समझाया था, kill the bacteria. That is known as the bactericidal drug. Next, the first is used in 1940 and it derived from Bacillus colistinus. जैसे हमने पेनिसिलिन के बारे में बात किया, सिफिलोस्पोरिस के बारे में बात किया, वैसे अगर हम कोलिस्टिन की बात करें, ये कहां से डिराइव किया जाता है? आंसर शुड बी इट इज डिराइव फ्रॉम द Bacillus colistinus, जो आपका बैक्टीरिया है जिसके थ्रू हम इसको डिराइव करते हैं, द Bacillus colistinus. कोलिस्टिन की यूजेस की बात करें, बहुत ही इफेक्टिव एंड बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। और जब क्रॉनिक इन्फेक्शन या जब रेजिस्टेंस आ जाता है एंटीबायोटिक्स का, तो हम कोलिस्टिन की ओर मूव करते हैं। ये कॉस्टली ड्रग होता है, इसलिए अर्ली स्टेजेस में इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लिख लिया? मूव करें। एंटीबायोटिक्स मोस्टली आज कंप्लीट कर देंगे, कुछ एंटीबायोटिक बच जाएगा आई थिंक, एक दो वो हम ट्यूसडे के कल के टेस्ट के बाद कंप्लीट। आई थिंक कल भी मेरी क्लास होगी, सेकंड क्लास, तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। टेस्ट होगा पहले सेम 2:30 टू 5 PM और उसके बाद 5:30 टू 7:30 आपका एज यूजुअल जो क्लास होता है वो क्लास हम कंडक्ट करेंगे। यस, मूव करें। नेक्स्ट, mechanism of action of colistin antibiotic, how these antibiotic work in our body. So it is a very important point. Colistin has an affinity. कल बताया था what is the meaning of affinity? Affinity means binding capacity. So colistin has a high affinity for phospholipid. Phospholipid कहाँ present होता है बैक्टीरिया में? Cell wall. The cell wall is made up from the phospholipid. So colistin has a high affinity for phospholipid. अभी मैं बना के दिखाऊंगा. Peptide molecule oriented between phospholipid and protein of bacterial cell wall form pseudoporins and bacterial cell wall. And so मैं इसको यहाँ बना के दिखाता हूँ, पहले फिर आप लिखें। ये आपका बैक्टीरियल न्यूक्लियस and this is the cell wall. It is a double layered cell wall with multiple peptide chain या bond. ये से होता है. Now in this cell wall and this peptide chain there will be a high amount of phospholipid present there. Our antibiotic colistin bind on these phospholipid और these peptide molecules. यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऐसे phospholipid पे और peptide chain पे क्या हो जाएगी? ये bind हो जाएगी because it is a high affinity for phospholipid and इस तरह से bind होगी। जहाँ भी phospholipid होगा वहाँ पे drug जाके bind हो जाएगा. Now after binding on this site the drug will cause the porine formation here. जहाँ भी ये bind होगी उन एरिया को क्या करेगी? destroy करके यहाँ पे क्या बना देगी? Porins बना देगी. And when there is a large size of porine, then more and more drug will enter inside and they will kill this bacteria or the nucleus of the bacteria. So this is the mechanism of action, how the colistin antibiotic work. Answer should be colistin antibiotic bind on the phospholipid membrane of the cell wall and create pseudoporins. Pseudoporins means जो already porins है वो तो बहुत narrow है. The porins which is already present on the cell wall is very narrow, but our antibiotic will create more wider size of porins which is naturally not present on the cell wall. That's why known as the pseudoporins. So ये लिखा है यहाँ पे. Colistin antibiotic has high affinity for phospholipid. Peptide molecule oriented between the phospholipid and the protein of the bacterial cell wall. Antibiotic forms pseudoporins on the bacterial cell wall. More antibiotic enter inside the bacteria. Inactivation of bacterial endotoxin और बैक्टीरिया क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. Clear? How the colistin is working in our body? Clear है? Concept? तो कल टेस्ट के लिए रेडी है? यस, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आए, प्रिपेयर होके आए और अपना बेस्ट एफर्ट्स दें. हम चाहते हैं आप लोग जल्दी सेलेक्ट हो जाओ, ज्यादा टाइम यहाँ नहीं रहे हैं. उसका मीनिंग नहीं हम भगाना चाहते हैं आपको, भगा नहीं रहे हैं, आपको एक अवार्ड रिवार्ड के साथ भेजना चाहते हैं कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनके
एज सुन एज पॉसिबल, जहां भी आपकी विश है, जिस सिटी में, जिस एम्स में आपको जाना है या जिस इंस्टीट्यूट में आपको वर्क करना है, वहां पहुंच जाए जल्दी से। और उसके लिए आपको थोड़ा सा ही क्या करना है, मेहनत करना है। जो आप कर रहे हो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, तो आप पहुंच जाओगे इजीली। यस। अभी तो टाइम ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके एक नंबर भी अगर कम आ जाए तो उनको फील होने लग जाता है ये कम कैसे आ गया, बहुत दुख होता है। तक नहीं होता है? नहीं होता है। लाइक माय नेफ्यू, जिसको मैंने बताया था 11th क्लास में मैंने एडमिट करवाया था, सो उसका कल पहला टेस्ट हुआ, नीट का पेपर होता है, उसका पेपर हुआ। टोटल 200 क्वेश्चन कुछ होते हैं, उनका पैटर्न जो होता है, और उसमें 180 क्वेश्चन करने होते हैं, और 720 मार्क्स का पेपर होता है। ये तो आपने सुना होगा नीट के बारे में। सो उसका आंसर चेक, मतलब वो रिजल्ट जो है वो शाम को ही अनाउंस कर दिया, हमारा टेस्ट होता है शाम को, रिजल्ट मोबाइल आ जाता है, सो मेरे ही नंबर पे आता है। सो मैं चेक कर रहा था, सो उसने 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 180 में से उसने 177 अटेम्प्ट किए। अभी तो 11th क्लास पहली बार ओमार टेस्ट दिया है, कभी ओमार सीट पे टेस्ट पेपर नहीं दिया होगा, नहीं दिया, दिया क्या होगा। और 177 में से 12 एमसीक्यू उसके क्या थे, रॉन्ग, 12 गलत कर दिए। और टोटल मार्क्स जो आए उसके 648 आफ्टर माइनस मार्किंग आउट ऑफ 720। सो मेरे तो दोनों रिस्पॉन्स आएंगे, रिएक्शन आएंगे, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मैं चाहता हूं, मैंने उसको पहले बोला नंबर हमेशा कितना आना चाहिए, मोर देन 700 इन एवरी पेपर, यू शुड गेट मोर देन 700 मार्क्स, 700 से ज्यादा नंबर आने चाहिए। अब उसका पेपर ओपन किया मैंने, तो उसमें ऐसे लिखा होता है कि ये क्वेश्चन का लेवल क्या है, इजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट है, ऐसे अलग अलग उसमें मार्किंग में लिखा होता है। सो रॉन्ग वाले अलग लिखे हुए हैं, राइट वाले अलग। तो रॉन्ग वालों को मैंने ओपन किया, उन रॉन्ग वालों में से 9 क्वेश्चन जो उसने गलत किए वो इजी वाले गलत थे, ओनली 3 क्वेश्चन थे जो मीडियम वाले गलत थे, टफ वाला एक भी गलत नहीं था। सो ठीक है, रिजल्ट देखने के बाद मैंने तो अप्रिशिएट ही किया, ऊपर से तो अप्रिशिएट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा प्रेशर किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सो अप्रिशिएट किया, बट उसको ये फील हो रहा है कि ये 12 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए मेरे, और इवन 12 में से भी इजी वाले क्वेश्चन कैसे गलत हो गए। सो उसने शाम तक मेरे से बात नहीं करी, रात 8-10 बज गए तब तक बात नहीं करी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं समझ रहा हूँ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ है। सो ऐसा होता है, और वो होना चाहिए आपके अंदर भी, कि एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो कैसे हो गया, मैं इसको क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन हम तो टेस्ट ऊपर मन से देते हैं, कोई माहौल नहीं होता है आपके अंदर, टेस्ट वाला माहौल ही नहीं है, आपको जस्ट एक फॉर्मेलिटी लगती है। आप में से बहुत सारे, आई थिंक 50 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आते ही नहीं है टेस्ट के दिन, वो पता नहीं छुट्टी मार के कहाँ घूमते हैं। आप पढ़ाई करने आ रहे हो 6 दिन, और 7th डे आपका इवैल्यूएशन है। मैं कल सुबह से लेकर अभी तक क्वेश्चन ही बना रहा हूँ, अभी भी इसमें खुला हुआ है, उसने आई थिंक दिखाया नहीं हो, पता नहीं आपको दिखाया होगा तो पता नहीं। पेपर ही बना रहा था मैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि आप जो पढ़ते हो वो नहीं डालते हम। आपकी जो भी किताबें हैं आपके पास, यादव नगरवालन, हाई लो जो भी है, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं देता हूं मैं, इवन कोई नहीं देता है। और आप जहां से पढ़ सकते हो, मोस्टली एनक्लेक्स जो पढ़ सकते हो सब पढ़ लो, फिर भी एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने पढ़ा हो। उसके अलावा क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो हम खुद क्रिएट करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप लोग उसको उतना सीरियस नहीं लेते हो। सो पेपर आपके लिए है, बेनिफिट आपको हो सकता है। जैसे कल किसी स्टूडेंट ने बोला सर, नंबर जो है हम कोशिश करते हैं अच्छे नंबर होते हैं, लाइक 120 मार्क्स मिले, और बाद में जब देखते हैं तो 130 या 140 135 होते हैं, मार्किंग गलत हो जाती है, टोटल सही नहीं करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। सो वो भी पॉसिबल है, कर सकते हैं, क्योंकि आपका नहीं है, उनको पता है मेरा तो है ही नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, वो ऐसे ही करेंगे, उसको आता नहीं है, जैसा आता वैसा करेंगे। तो कोई बात नहीं, वो जो कर रहा है वो ठीक है, आप बाद में अपना मार्कशीट ले वहां से करेक्ट करें, और आप सेल्फ से एक बार इवैल्यूएट करें। कोई बात नहीं, दूसरों के सामने एप्रिसिएशन नहीं मिला, लेकिन जब आप अपने आप से उस रिजल्ट को देखोगे तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस मैंने इस बार अच्छा किया है। और दूसरों को नहीं दिखाना है, हमें क्या करना है, अपने आप को ये बेस्ट करना है कि यस इस बार 130 आए, अगली बार 140 लाऊंगा मैं, और मैं सेलेक्ट होके जाऊंगा 150 लाऊंगा, वही करना है आपको। यस। तो पेपर को जो है क्या करें, सीरियसनेस के साथ देना सीखें, सीरियस होकर देना है। ये समझो कि नोट सेट का पेपर ही दे रहे हो, अभी से जब उसको सीरियस मानोगे तो एग्जाम में भी वो सीरियसनेस रहेगा। और आप अगर अभी, लाइक मैंने उस एग्जांपल दिया था कि चॉकलेट को 10 मिनट तक नहीं रोक के रख सकते आप अपने अंदर, तो लाइफ में आप आगे भी वैसा ही कर पाओगे, आप कभी भी संघर्ष नहीं कर पाओगे लाइफ में। सेम अगर आप अभी पेपर को इतना सीरियस नहीं ले रहे हो, तो बाद में नॉट सेट का पेपर भी आपको ऐसे ही लगेगा, कोई नहीं अगले साल 6 महीने बाद और आएगा, क्या फर्क पड़ा होगा, तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने बाद और दे देंगे, अभी भाई की शादी है, बाद में देखेंगे, छोड़ दो, शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई की है ना, अपनी तो नहीं है, या और कुछ है वो रहने दो, जो होगा बाद में देखेंगे। उसका इंपॉर्टेंस अभी नहीं होना चाहिए, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिलेक्शन ले लो, फिर वहां इतनी छुट्टियां मिलती है, आप 10-10 साल अटेंड करना, फिर भी छुट्टियां खत्म नहीं होगी। मैंने एक दिन कैलकुलेट करके बताया था आपको, साल में कितने दिन काम करते हो आप, कल कैलकुलेट करोगे आप देखोगे बहुत कम दिन काम करना होता है। 30 तो आपको छुट्टियां वैसे ही हर साल मिलती है, मिलता है, सीएल मिलता है, 10 सीएल मिलता है, 40, हर महीने में 8 छुट्टी मिलती है, 12 into 8 96 छुट्टी हो जाती है। ऐसे करके 150 डेज तो आप छुट्टी में ही रहते हैं, और आपके पास मेडिकल लीव अलग होती है। और बच्चा कितना 150 डेज बच्चा है, आधा साल भी जाना नहीं है, आधे साल में भी सिर्फ 6 घंटे ही जाना है दिन का, और 6 घंटे में भी काम सिर्फ 4 घंटे करना है, और वो भी दिन में एक वीक में 3 बार ही करना है, और उसमें भी 1-2 दिन काम चोरी कर लो तो कुछ नहीं करना है। सो कुछ भी नहीं है काम, नए के बराबर काम करना है, पैसे 1 लाख रुपए लेने हैं और मजे करने हैं, बस उसके लिए थोड़ा क्या करना है, संघर्ष करना। आप भी थोड़ा संघर्ष करोगे, रिजल्ट बाद में बहुत अच्छा होगा, और बहुत मजा भी आएगा लाइफ का। जितना डिले करोगे उतना आपका संघर्ष डिले होता जाएगा, आपका जो रिजल्ट है वो डिले होता जाएगा। तो क्यों डिले करना है, क्यों नुकसान करना, फाइनेंशियल लॉस, टाइम का लॉस, अभी मजे नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो भी लॉस हो रहा है। हर साल गवर्नमेंट बाहर भेजती है घूमने के लिए, पता है आपको, पैसे देते हैं घूमने जाओ, अभी आप जितने साल यहाँ रहोगे उतने साल घूमने नहीं जाओगे, फिर वो लॉस हो रहा है आपका। है एलटीसी मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेक्शन, एलटीसी होता है, इसमें छुट्टियां भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, आप घूम के वापस आओ, और क्या करे गवर्नमेंट आपके लिए है, और आप जो हो लेना ही नहीं चाहते हो, बाद में पता नहीं इतनी अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं आएगी। यस और नो। तो आप उन अपॉर्चुनिटीज का पूरा पहले के लोगों, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको छुट्टियां मिलती, वो खेत में काम करते थे। पहले कोई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होता तो क्या करता, सुबह से शाम तक या जो भी उसका ड्यूटी आवर जाएगा, फिर खेत में जाएगा, वहां काम करेगा, गाय का गोबर डालेगा, वो गांव में रहना पसंद करते थे, उनको घूमने से कोई मतलब नहीं, उनको छुट्टियां इकट्ठी करके लास्ट में पैसे मिलने वो चाहिए होता था। फिर जब रिटायरमेंट होते तब उनको पैसे मिलते थे छुट्टियों के, 2 साल की छुट्टियां इकट्ठी हो गई,
अब उनके पैसे ले लो, क्योंकि उनको पैसे मिल जाएंगे बाद में। हमें पैसे नहीं चाहिए, आप उनको एंजॉय करो, बट उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बहुत इजीली आ जाएगा। तो करोगे पेपर को कल से सीरियसनेस के साथ, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, बस थोड़ा सीरियस होकर करो कि यस आने वाला नोट सेट ही लास्ट है मेरे लिए, तो इसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं है। जब आपको लग जाता है ना कि लाइफ में अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप देखना उसके बाद जब ये लास्ट हो गया तो फिर आप कुछ करें, आपको पता है नीचे जाएंगे तो जाएंगे, तो फिर कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाओगे बचने की। यार गिर जाओगे, आप गिरने तो जो होगा देखेंगे, है नहीं गिरोगे, और आप वहां सक्सेस भी हो जाते हो। जब आपको लगता है कि लास्ट बस से गांव जाने के लिए इसके अलावा कोई बस नहीं इसके बाद, तो आप 2 घंटे पहले पहुंच जाओगे वहां पे, और कभी वो बस मिस नहीं करोगे या वो ट्रेन मिस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके बाद कुछ नहीं है। वैसा ही मान के चलो कि इसके बाद अब कुछ भी नहीं है। घर वाले उधर गांव ले जाएंगे फिर बस, है वहीं पे रखेंगे, वहीं गोबर डालना है, वहीं खेत पे जाना है, ऐसा मान के चलो। शादी करा देंगे, हाउस वाइफ बना देंगे, हाउस हस्बैंड बना देंगे, उधर फोगाव डलवाएंगे फिर ले जाकर। फिर क्यों बनना है? जब आपके अंदर पोटेंशियल है, जब इतनी सब कुछ है, तो क्यों बनना है? यस, जब लाइक एक 4 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, मम्मी पापा उनका बेटा और एक और ऐसे कोई होगा फैमिली मेंबर जा रहे हैं, उनसे पूछा कहां जा रहे हो, बोला हम लड़की देखने जा रहे हैं। तो उनको गाड़ी निकाल के बोला तुम्हारी औकात है तुम लड़की को देखोगे, हैं? आजकल लड़की तुम नहीं देखोगे, लड़कियां तुम्हें देखेगी अब। सो हम तो चाहते हैं सोसाइटी ऐसी हो। आप जो है पेपर को सीरियस नहीं लेते हो। जब हम सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी में चेंज कैसे आएगा? हमारी सोसाइटी का ये रूल है, जैसे ही आप शाम होंगे और खाने की तरफ देखोगे तो आपकी नजर किधर जाएगी? मम्मी की तरफ। कभी पापा की तरफ देखो, खाना पापा, कभी देखा? क्यों? आपको अगर एक गिलास पानी पीना है ना, आप आवाज दोगे ना, तो आप सोनू को दोगे, मोनू को नहीं दोगे आवाज। सोनू पानी लाना। क्यों नहीं आप मोनू पानी ला? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी सिखा रही है हमें, और हम वही कर रहे हैं। शादी के बाद हस्बैंड के घर जाना, क्यों? उल्टा कर दो, हस्बैंड को बोलो उधर जा, इधर नहीं रहना है। भाई हमने पढ़ी है 2 टाइप की शादी, मैट्रियार्कल एंड पैट्रियार्कल, दोनों है, कॉमन है, दोनों एप्लीकेबल होनी चाहिए। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें उसके लिए कैपेबिलिटी दिखानी होगी, हमें कैपेबल बनना पड़ेगा। लाइक अगर मैं एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूं तो मेरे पास कैपेबिलिटी है, इसलिए कोई मेरे साथ आके रहेगा। आप भी एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ, कोई भी आपके साथ आके शादी करके रहेगा, लेकिन वो कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। और हम उसको मजाक में ले रहे हैं, सीरियस लेना नहीं चाह रहे। आप बन जाओ कैपेबल, घर वाले आपको नहीं बोलेंगे शादी कराएं शादी कराएं, फिर वो आपसे पूछेंगे जब आपकी इच्छा होता है, जिससे इच्छा हो बोलना हम करा देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी आ गई, अब कैपेबिलिटी है, वो हमें डेवलप करना पड़ेगा। और जिनकी हो गई वो तो पढ़ते रहो, वैसे उस झंझट से बाहर निकलना तो पढ़ते रहो, नहीं तो वहां घर जाकर रोटी बनानी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अगर आप एक हाउस वाइफ बन के रहते हैं, या हाउस हस्बैंड तो भी आया नहीं, धीरे धीरे आएगा, तो वहां पे आपको घर का ही काम करना है। फिर सुबह उठते ही झाड़ू का नंबर आते, झाड़ू भी अपनी मम्मी की तरफ ही देखता है, वो भी पिता की तरफ नहीं देखता है। अगर एक आदमी बाहर झाड़ू निकाल रहा है तो लोग 10 लोग उसको देखेंगे, ऐसे हैं आदमी से झाड़ू निकलवा रहा है, क्यों? भी उसमें कोई गुनाह हो गया, कुछ गुनाह हो गया? झाड़ू निकाल दिया तो क्या झाड़ू अछूत हो गया, या आदमी अछूत हो गया? अभी आदमी काम का नहीं रहा, ये तो झाड़ू निकालता है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है हमारे इधर, और उसको क्या करना है? चेंज करना है। वही तो सोच, मेंटालिटी को चेंज करना है, बदलाव लाना है। जो हम कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं, सबको करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं खाना तो यही बनाएगा, मैं आदमी में बैठ के ऐसे खाना खाऊंगा बस, बनाऊंगा नहीं। क्यों भाई? हाथ 2 है आपके पास भी, 2 उधर भी है, वजन दोनों का बराबर है, बनाओ। मिस सबका बराबर, सब कुछ सेम है, रोटी तो सबकी बनी जाएगी गोल। 4 दिन प्रैक्टिस करो, सब बनेगी। बाकी सब बनेगी, मुझे आता नहीं है। 4 दिन भूखे रहो, 5 दिन ऑटोमेटिक खाना बनेगा। देखना कितना अच्छा बनेगा वो भी, भले ही कच्चा होगा तो भी बहुत अच्छा लगेगा वो। क्यों? क्योंकि भूख से मरने से अच्छा वो ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो अभी संघर्ष है, लेकिन उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप जोधपुर में आके अगर एम्स में काम करोगे तो आप जोधपुर में रहोगे, ना कि अपने घर जाके डेली अप डाउन करोगे, वहां रहोगे और वहां की रोटी बनाओगे, नहीं करोगे। यहाँ रहोगे, यहाँ की फैसिलिटीज यूज करोगे, वो पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, माहौल चेंज हो जाएगा, सब कुछ। तो वही तो करना है। गांव में क्लिनिक, पीएससी, सीएससी पे उधर नहीं जाना है हमें, हमें कहाँ रहना है? हाँ, अपना सब कुछ चेंज करना है, सोसाइटी पूरी चेंज करनी है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, साइड इफेक्ट्स ऑफ कोलेस्ट्रीन। नेक्स्ट मूव करें, साइड इफेक्ट्स ऑफ कोलेस्ट्रीन। कोलेस्ट्रीन की बात करें, अभी हमने बात किया, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रग व्हिच कॉमनली बाइंड ऑन द फॉस्फोलिपिड इन आवर बैक्टीरियल सेल। सो साइड इफेक्ट क्या क्या कर सकता है ड्रग? These are the common side effect of every antibiotics. Systemic toxicity, flushing due to vasodilatation. Next, paresthesia, that is numbness due to blockage of the action potential or the sodium channel at the action potential site, जो हम synapse पढ़ते हैं वहाँ पे. It is a nephrotoxic drug, so drugs should be given with CAPT report. kidney function test आपको करना है यहाँ पे, और अगर patient already known case of renal failure है तो उसको drug provide नहीं करना है. Neuromuscular blocking effect by blocking the sodium channel. So these are the side effect, और इसमें बस कुछ ही साइड इफेक्ट आपको ध्यान रखने से, फ्लशिंग से कभी-कभी क्वेश्चन आता है, a patient is having the cholesterol antibiotic, what will be the complication? और उसमें ऑप्शंस आता है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे मैंने हाइपोटेंशन नहीं लिखा, लेकिन आपको आंसर आना चाहिए कि हाइपोटेंशन हो सकता है, यस और नो? नहीं होगा, क्योंकि जब फ्लशिंग हो रहा है तो उसका कोज क्या है? वैसोडाइलेशन, और वैसोडाइलेशन में आल्सो प्रोड्यूस हाइपोटेंशन। सो ये एक ही मेन इंपैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड पॉइंट याद रखना है, इसके साथ कौन सा टेस्ट करना है? किडनी फंक्शन टेस्ट। कैप्टी की रिपोर्ट होनी चाहिए जब आप कोलेस्ट्रॉल ड्रग दे रहे हैं। अगर पेशेंट रिनल फेलियर का है या किडनी फंक्शन एबनॉर्मल है तो उसको ड्रग प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर? सो कोलेस्ट्रॉल इट्स अ पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये ड्रग मेनली आपके पेशेंट में स्यूडोपोरेन फॉर्मेशन करती है बाय destroying the phospholipid membrane, and the side effect are the vasodilation as well as the nephrotoxicity. Clear? Move करें next. Uses of colistin. So topical use in skin infection or burn. Use oral use in the gram-negative bacterial infection. Due to high systemic toxicity, drug systemically not used. Because of it is highly nephrotoxic drug and it may also produce hypotension or the vasodilator effect. That's why it is not used in the systemic. यानी IV और IM लगाना हम इसको prefer नहीं करते हैं. इसका reason है
ड्यू टू द हाईली टॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी इफेक्ट की वजह से। तो ये ओरल या फिर टॉपिकल प्रिपरेशन में ही हम ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर? सो ये सब अभी जो हम पढ़ेंगे सारी स्मॉल स्मॉल एंटीबायोटिक्स है, छोटी छोटी एंटीबायोटिक्स हो गए। आप लोग मेहनत करते हो, पढ़ते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये कि आप लोग अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, तो आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं है, एंड दिस इज द बिग प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, लाइक पेपर होता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं थ्योरी के साथ में, गलत हो जाते हैं। वो गलत हो गए तो हो गए, बस आप उसको ले जाके फेंक देते हो ऐसे। आप कोशिश भी करते होंगे तो आप पूछेंगे नहीं, पता नहीं कहां से कोशिश करेंगे, गूगल से कोशिश करेंगे, पता नहीं किससे कोशिश करेंगे, और वो कोशिश फेल ही होगी फिर। सो अगर आपको किसी ने मना किया हो कि नहीं पूछ रहा है, या किसी ने बोल दिया ये आज के बाद नहीं होगा ऐसे, हम तो आगे से बोलते हैं बताओ भी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन था नहीं था, आप लोग कुछ डाउट नहीं होता है। कोई भी कनेक्शन अगर आप नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं हो रहा है, लग रहा है कि ये थिंग्स नहीं हो रही, तो आप पूछे, हम उसको देखेंगे यहाँ पे, ताकि वो माइंड में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में डाउट नहीं रहेगा। डाउट लेके चलोगे, डाउट ही डाउट रहेगा फिर माइंड में, कभी खत्म ही नहीं होगा, क्लियर होगा ही नहीं, वो तो उस डाउट को क्लियर करो, निकालो बाहर, और उसके अकॉर्डिंग अपना रेस्पॉन्स करो। नेक्स्ट द सेकंड जो एंटीबायोटिक आज हम पढ़ेंगे वो है एम्फोटेरिसिन बी। इट्स ए एंटी फंगल ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, एम्फोटेरिसिन बी। सो इट इज एन एंटी फंगल ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइस नोडुसस, जो फंगाई होता है जिससे हम इसको बनाते हैं। So this amphotericin B is obtained from the Streptomyces nodosus, its type of fungi, जहां से हम इसको obtain करते हैं, derive करते हैं। Amphotericin B, clear है? From tomorrow we are also starting MCQ batch, कल से हम MCQ batch भी start कर देंगे, और उसकी क्लासेस भी आपके सेम टाइम पे होगी, फ्रॉम 3 to 7 pm, 3 to 7:30 pm। जिन्होंने बाई किया या कोई बाई करना चाहता है तो उनके पास ऑप्शन है, वो क्लासेस को बाद में वॉच कर सकते हैं। आफ्टर लाइव क्लास सेव हो जाएगी ऐप में, और वहां से आप अगले दिन मॉर्निंग जब आपकी क्लासेस नहीं होती है, उस टाइम आप वॉच करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। बेच जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं पता है, तो उसके अंदर मेनली जो हमारा होता है सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, टॉपिक वाइज। लाइक जब हम कल से मैं स्टार्ट करूंगा इमरजेंसी नर्सिंग, और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक होगा मैकेनिकल वेंटिलेशन से मैं स्टार्ट करूंगा। सो आई विल टीच विद अ शॉर्ट थ्योरी, कुछ थ्योरी के बुलेट पॉइंट्स होंगे जो उस पूरे चैप्टर को क्लियर करेगा, एंड देन उसके बाद हर एक पॉइंट से रिलेटेड उसमें एमसीक्यूज होंगे वेंटिलेटर का, और उसके कम से कम आई थिंक 60 और 280 एमसीक्यूज कुछ होंगे जो वेंटिलेटर से रिलेटेड होंगे। और उसके अलावा आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एमसीक्यू जो बच जाएगा कहीं भी उस टॉपिक का। और ऐसे करके सारे टॉपिक वाइज वन बाय वन सारे एमसीक्यूज हम पहले आपको मौका मिलेगा आंसर देने का, और उसके बाद हम विद रैशनल उसको देखेंगे कि इसका आंसर ये क्यों है और बाकी 3 ऑप्शंस क्यों नहीं है। तो वो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, एंड आई थिंक आप लोगों के लिए तो आई थिंक 1000 का डिस्काउंट भी है, जिन्होंने बाई किया आई थिंक उनको पता होगा, मैंने कल ही एड देखा, मुझे पहले ही पता भी था। देयर इज अ 1000 डिस्काउंट फॉर द जेआईएनसी ओल्ड स्टूडेंट, जिन्होंने पहले ही बैच बाई कर रखा है कोई भी, तो उनके लिए। चलो बाकी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो एम्फोटेरिसिन बी बाइंड विद द एर्गोस्टिरॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेंसिटिव फंगल सेल। जैसे हमने बात किया था फॉस्फोलिपिड, वैसे ही यहाँ पे वन मोर कंपोनेंट दैट इज द एर्गोस्टिरॉल। इट्स आल्सो टाइप ऑफ एर्गोस्टिरॉल। क्या होता है एर्गोस्टिरॉल? स्टेरॉइड है? स्टेरॉइड क्या है, कम आ रही है? एर्गोस्टिरॉल क्या है बताओ आप, नहीं पता क्या है? फेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। सो प्रोटीन कंटेंट एर्गोस्टिरॉल जो आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, और उसके ऊपर क्या होगी, बाइंड करेगी। नेक्स्ट बाइंड करके सेम यहाँ भी क्या करेगी, स्पोरेन फॉर्मेशन, स्यूडो पोरेन फॉर्मेशन, और उसके थ्रू सेम किलिंग प्रोसेस कंटिन्यू करेगी। पोरेन डिस्टर्ब द मेम्ब्रेन फंक्शन, सो आइदर द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट कम आउट और मे बी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मूव इनटू द सेल, एंड सेल विल undergo the death. So leaking of potassium and small molecules, or then cell will shrink and death, cell death हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पे इसमें क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए एर्गोस्टिरॉल मॉलिक्यूल है, और इनके ऊपर हमारी ड्रग क्या होगी, बाइंड हो जाएगी। सो ड्रग विल बाइंड ऑन दिस मॉलिक्यूल, लाइक दिस ड्रग इज बाइंडिंग ऑन these all molecules. After binding on this molecule, drug will create pseudoporins here, and these pseudoporins act as a leaky channel. ये किसका काम करेंगे, लीकी चैनल का काम करेंगे। लीकी चैनल मतलब यहाँ से अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बाहर लीक आउट हो जाएंगे, और जब बाहर लीक होंगे तो सेल श्रिंक होगी, और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन। के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बाहर लीक आउट हो जाएंगे, और जब बाहर लीक होंगे तो सेल श्रिंक होगी, और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। क्लियर? एम्फोटेरिसिन बी मूव करें। सो आज आपका फंडामेंटल भी कंप्लीट हो जाएगा। यस, फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ साथ में फार्मा भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, एक या दो ही क्लास बचेगा। उसके अलावा सोशियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अभी पढ़ाया था आप लोग कोई? हाँ, सोशियोलॉजी पढ़ाया, और मैंने स्टार्ट किससे किया था, नए बैच में क्या पढ़ाना स्टार्ट किया था, फार्मा ही पढ़ाना स्टार्ट किया था। फार्मा से स्टार्ट किया था मैंने, नए बैच में फार्मा ही स्टार्ट किया था। हाँ, तो फार्मा और सोशियोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? जेनेटिक्स?
जेनेटिक्स तो ओल्ड वालों को ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, नर्वस भी पढ़ा दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं डील नहीं करूंगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम सर पढ़ाएंगे, मैं उसके साथ डील नहीं करता हूँ। सो यस, मेरे पास तो दो तीन टॉपिक है बस, एक नर्वस टॉपिक है छोटा सा, एक छोटा सा रीनल है, और एक छोटा सा इमरजेंसी है, और ये सबसे सिंपल वाला फार्मा है, और बाकी बचे हुए अदर्स है। अरे मैं आपके कहने से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वही पढ़ाऊंगा जो मेरी इच्छा होगी, जिस दिन मैं उठूंगा सुबह उठते ही लगेगा आज ये पढ़ाना है, उस दिन वो स्टार्ट कर दूंगा। सो इट इज नॉट डिपेंड ऑन यू, इट इज डिपेंड ऑन मी, मेरे को क्या पढ़ाना है, बिकॉज मैंने बोला ऑलरेडी कि अभी मैं कुछ दिन गैप आएगा, गैप इसलिए आएगा क्योंकि पुराने बच्चे उनको भेजना है अक्टूबर वालों को, और अक्टूबर वालों को आई थिंक रियल भी पढ़ा दिया मैंने और नर्वस भी पढ़ा दिया, और उनको मेरी तरफ से ये लास्ट टॉपिक चल रहा है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, सब कुछ हो गया मेरी तरफ से अक्टूबर वालों का, इसलिए मेरी कुछ दिन छुट्टी आ जाएगी आपके लिए, और तब तक आपका गायनेकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा और इंटेरोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, फंडा ऑलरेडी हो ही रहा है, साइकेट्रिक जो आपका स्टार्टिंग से हमने बात किया जो जनवरी वाले हैं उनका स्टार्ट होने वाला है, परसों से साइकेट्रिक स्टार्ट हो जाएगा, और कार्डियक की क्लासेस कल से स्टार्ट, कल नहीं परसों से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही सर रिटर्न होते हैं परसों से आपकी कार्डियक स्टार्ट हो जाएगी। हाँ हाँ, स्केलेटल भी सर पढ़ा देंगे, सर का ही पार्ट है वो सर पढ़ा देंगे, वो सुबह पढ़ाएंगे आपको, और पीडियाट्रिक मैंने बोल दिया संडे को हो जाएगा, लिख लिया। नेक्स्ट रजिस्टर, मैंने बोला इस बार सितंबर तक सब खत्म हो जाएगा, और इस बार जो नया बैच होगा उसमें सिर्फ नए बच्चे होंगे, आप सब चले जाओगे, नॉर्थ से सेलेक्ट होकर सारे एम्स में मिलोगे, और यहाँ सब कौन होंगे, नहीं होंगे। रेजिस्टेंस, एम्फोटेरिसिन बी की बात करें रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो सकता है, सो फंगल रेजिस्टेंस आल्दो इनफ्रीक्वेंट, नॉर्मली जो फंगाई सेल होती है वो बैक्टीरिया जो आपकी एंटीबायोटिक है उसको बहुत ही रेयरली रेजिस्टेंस कोज करती है, बट एक ही रीजन है और वो है इर्गोस्टिरोल। जो हमने भी बात किया कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर इर्गोस्टिरोल है, और इसी पे आगे क्या होगी, ड्रग बाइंड होगी। अगर मैं इस इर्गोस्टिरोल को यहाँ से आउट कर दूं, इफ आई विल रिड्यूस द नंबर ऑफ इर्गोस्टिरोल इन द सेल मेम्ब्रेन, देन द बाइंडिंग ऑफ द ड्रग विल रिड्यूस और इंक्रीज, बाइंडिंग विल reduce because the ergosterol cell will also reduced, जब ergosterol कम है तो सेल की ऊपर ड्रग की बाइंडिंग भी क्या हो जाएगी, कम, and when there is less number of binding is there then the effect of the drug will also reduce, and that is only the way for the development of resistance. So fungal resistance although infrequent is associated with decreased ergosterol content of the fungal membrane. So fungi cell reduce the ergosterol in the cell membrane, so drug will not bind on the cell membrane of the fungi and drug will be ineffective in your body. clear, resistance कैसे हो सकता है, क्लियर है, मूव करें नेक्स्ट। मूव करें नेक्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। सो एम्फोटेरिसिन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय स्लो आईवी इन्फ्यूजन। अभी आपने जब फंगल इन्फेक्शन आया था म्यूकर, म्यूकरमाइसिस आया था, व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस देखा था, येलो फंगस, सो उस फंगाई को ट्रीट करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी वाइडली यूज्ड ड्रग जो हमने यूज करी थी बहुत कॉमन हॉस्पिटल्स के अंदर, एंड इसका जो मेन इंपैक्ट है वो है यू शुड गिव दिस ड्रग वेरी स्लोली एंड इट शुड बी गिवन आईवी ओनली। व्हाई इट इज गिवन स्लोली, देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन आता है आप उसको जब डाइल्यूट करोगे जैसे इसमें लिखा है एम्फोटेरिसिन बी इज इनसोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, सोल्यूट, आपने अगर नॉर्मल सलाइन से भर के उसमें डाल के ऐसे करने लगे तो पूरे दिन भर भी आप मिक्स करोगे तो भी मिक्स नहीं होगा, आप पूरे दिन भर यही करते रहो, टाइम खत्म हो जाएगा आपका, बस अगले वाले को देख के बोलो मिक्स नहीं हो तब तक करते रहना, वही चलता रहेगा क्योंकि ये कभी मिक्स होगा नहीं। सो एक तो इसके साथ इसका स्पेसिफिक, इसके साथ जैसे नॉर्मल इंजेक्शन के साथ में एक छोटा सा सलाइन का आता है, सलाइन का बोला था छोटा सा, सेम वैसे इसके साथ में भी एक 10 ml का ये एम्पूल रेस्प्यूल आएगा जिसके अंदर सोडियम डीऑक्सीकोलेट फिल्ट्रेट रहता है, और आप इसी को मिक्स करोगे तभी ड्रग क्या होगा, डाइल्यूट होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट, इफ यू शेक द बोतल इट विल प्रोड्यूस फोम, जाग, जितना आप इस बोतल को हिलाएंगे उतना ज्यादा क्या बनेगा, जाग बनेगा, और आप सोचेंगे अभी कम होगा, जितना मिक्स करते जाएंगे उतना जाग ज्यादा बनता जाएगा, और उसकी वजह से ड्रग आपकी सिरिंज में आएगी नहीं, ओनली फोग ही फोग होगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर डाल के इसको जस्ट 30 सेकंड रखना है, ड्रग ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना होता है। सो ये एक स्पेसिफिक प्रिवेंशन आपको जो ध्यान रखना होता है जब भी हम ये इंजेक्शंस लगाते हैं। So amphotericin B is insoluble in water and injectable preparation require the addition of sodium deoxycholate. Amphotericin B is a highly tissue bound, penetrate into various body fluids. So tissue penetration इसका बहुत अच्छा होता है and will reach into the extracellular as well as in the intracellular compartment of your body. So it kill the extracellular organism or it kill the intracellular organism. And the next is, so drug should be given slowly and IV infusion only because the drug is highly irritating and it is very painful injection. If you give very fast transfusion, pain will be there as well as thrombus formation chances will be there, venous irritation will be there. So slow infusion देना है। नेक्स्ट इनसोल्यूबल है तो साथ में क्या चाहिए आपको, डीऑक्सीकोलेट, सोडियम डीऑक्सीकोलेट जो आता है वो आपको इसको रिक्वायर्ड होगा, और टिश्यू पेनिट्रेशन इज वेरी गुड, बहुत अच्छे से टिश्यू को पेनिट्रेट करती है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बहुत दोनों में ये मूव कर सकती है। देख लिया। नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ एम्फोटेरिसिन, यस किसमें, इंजेक्शन के अंदर सिरिंज को, लिख लिया। देखो आप मैं आता हूँ।
नहीं है। व्हाट? हाँ, एक्शन मैकेनिज्म जो आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑइंटमेंट का। सो हाँ, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, there are various type of ointment, different types of ointment is there, so everyone has different onset of action. Mostly it will start working by 10 to 15 minutes, जो normal duration होता है. Spray work differently. Spray लाइक जो हम डाइक्लोफेनिक स्प्रे या जो अदर स्प्रेज होते हैं उनका जो वर्क है वो दो वर्क करते हैं. वन इज द कूलिंग इफेक्ट, कोल्ड होता है. सेकंड इज ड्रग इफेक्ट. सो फर्स्ट दे विल प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, कूल करेंगे उससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से सेंसेशन कम जाएंगे और उसकी वजह से पेन कम होगा. फिर उसके बाद वो ड्रग जो है 10 to 15 मिनट में अपना एक्शन दिखाएगी और वो बाद में उसका इफेक्ट है. तो दोनों एक्शन की वजह से अगर आप ऑइंटमेंट लगाएंगे तो दर्द लेट ठीक होगा, लेकिन स्प्रे करेंगे तो जल्दी ठीक होगा. यस. नहीं, ये तो देखो रिसेप्टर होते हैं दो टाइप के, निकोटिनिक एंड मस्कारिनिक रिसेप्टर. जो ड्रग इस पे बाइंड होती है वो निकोटिनिक ड्रग, जो इस पे बाइंड होती है वो ये प्रोटीन. हाँ निकोटिन, हाँ निकोटिन इसी पे जाके बाइंड होता है ना. निकोटिन जो तंबाकू खाता है वो भी इसी पे बाइंड होती है. सेम. हाँ, ये तो ड्रग्स हैं हम जो पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, और वो है एडिक्शन वाली सब्सटेंस, वो भी इसी पे बाइंड होता है, ये भी इसी पे बाइंड होता है. मसल्स नहीं है, ये भी रिसेप्टर है मस्करेनिक. जैसे निकोटिनिक होता है वैसे मस्करेनिक रिसेप्टर होता है. मैंने रिसेप्टर लिखा था ना, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के टाइप है ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर है. ये निकोटिन रिसेप्टर पे काम करता है, ये ड्रग पे नहीं, निकोटिन रिसेप्टर पे काम करेगा, और ये मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम करेगा. रिसेप्टर पढ़ना. हाँ, क्या बता रहे थे आप? ओके, इसकी बोल रहे हैं, ये बताते हैं. हाँ जी. कोलेस्ट्रॉल सिस्टमिक यूज लेते हैं, सिस्टमिक यूज नहीं लेते. हाँ, एल्टा का लेते हैं, लेकिन जबकि मैंने यहाँ काम किया एक्चुअली वहां पे कोलेस्ट्रॉल का आईवी देते हैं. नहीं देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू हाई सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, सिस्टमिक नॉट यूज्ड. एक होता है नॉट यूज्ड, एक होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड. दो टर्म्स होती है. सो नॉट यूज्ड मींस हम यूज नहीं करते, बट लाइक वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस. मैंने बोला था अगर बहुत क्रॉनिक इंफेक्शन है, सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो फिर हम इसके साथ जाते हैं. लेकिन अगर हमारे पास, क्योंकि वहां पे कोई ड्रग इफेक्टिव नहीं है बाकी ड्रग्स, और ये किडनी के ऊपर जो यहाँ पे अपने बात नेफ्रोटॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं इफेक्ट कर रही है, लेकिन जब दूसरी ड्रग इफेक्टिव नहीं है, लाइक अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है. हाँ, बाकी कोशिश करते हैं इसको अवॉइड करें. यस. एंटीबायोटिक और एंटी फंगल, आगे दोनों ये वाली ड्रग एम्फोटेरिसिन भी है. हाँ, इसकी भी बता दूंगा. मूव करें अभी नेक्स्ट टाइम. भाई मुझे वापस पढ़ाना भी है? क्योंकि मैं उधर जाता हूं तब तक आप लोग बाहर जाना स्टार्ट कर देते हो, फिर मेरा पारा गर्म हो जाता है. A client with cirrhosis of the liver becomes comatose and is started neomycin 300 mg 600 nasogastric tube. कल तो पढ़ाया था ना, डिक्रीज अमोनियम. सी वाला आंसर है ना. हैं, इन्फेक्शन के लिए ड्रग दे नहीं रहे ना हम. ड्रग क्यों दे रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? पेशेंट इज हैविंग लिवर सिरोसिस एंड पेशेंट स्टार्टेड नियोमाइसिन. सिरोसिस जो हम लिवर सिरोसिस जब पढ़ते हैं तो अमोनियम सबसे मेन फैक्टर होता है, उसी के लिए ड्रग यहाँ दी जा रही है. कल भी मैंने बताया था नियोमाइसिन कब देंगे हम ओरली, नियोमाइसिन ओरली कब यूज करेंगे, अभी बता दो, बैठ जाओ अभी बता. कल आपको बताया था नियोमाइसिन जो है ओरली कब यूज करोगे. दो ही कंडीशन लिखवाई थी, वन इज फॉर बाउल प्रिपरेशन एंड सेकंड इज फॉर हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, लिवर सिरोसिस. बाकी कभी भी इसको हम सिस्टमिक यूज नहीं करते हैं. सो जो इन्होंने क्वेश्चन दिखाया उसमें यही है कि पेशेंट लिवर सिरोसिस का है और उसको डॉक्टर ने 300 mg नियोमाइसिन एनजी ट्यूब से स्टार्ट किया, उसका पर्पस क्या है उसमें पूछा है. सो पर्पस इज टू रिड्यूस द अमोनियम, दैट इज द पर्पस. वहां एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं है, बैक्टीरिया को किल करना इफेक्ट नहीं है वहां पे. वहां इंपैक्ट क्या है, अमोनिया को डिक्रीज करना है. दूसरा उन्होंने एक इंजेक्शन की बात करी, एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है, इसके साथ में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे इसके साथ में एक प्लास्टिक का अलग से आपको एक केप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, और वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राउंड होता है, एक इधर से निकला हुआ होता है, एक उधर निकला होता है, बीच में एक फिल्टर पेपर लगा होता है. सो वो जो है वो एक फिल्ट्रेशन केप है जो आप दिखा रहे थे, फिल्ट्रेशन के लिए होता है. आपको क्या करना होता है, इंजेक्शन और जो सिरिंज होती है उसके बीच में इसको लगाना होता है. जो आपकी सिरिंज है और जो निडल है दोनों के बीच में लगेगा, और ऊपर निडल होगी. फिर जब आप इसको लोड करेंगे तो जो ड्रग उसके अंदर आएगी उससे फिल्टर होकर आएगी. सो कोई भी अगर फंगल कंटेंट उसके अंदर है, क्योंकि फंगाई से बना हुआ है, तो वो उसके अंदर फिल्टर होकर आएगा और पेशेंट को इधर थ्रोम्बस फॉर्मेशन या एम्बोलाइक फॉर्मेशन नहीं होगा. तो फिल्ट्रेशन करने के लिए है वो मेम्ब्रेन है वो. इनका क्वेश्चन था कि एम्फोटेरिसिन बी जो है ये एंटी फंगल और क्या एंटी बैक्टीरियल, क्या पूछा था आपने, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक. सो एंटीबायोटिक का मतलब ये नहीं है कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करती है, वो होती है एंटी बैक्टीरियल. एंटीबायोटिक मतलब वो सारी ड्रग जो आपके किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है वो सारी क्या है, एंटीबायोटिक. अब आप अगर बैक्टीरिया को किल करें तो एंटी बैक्टीरियल, फंगाई को किल करें तो एंटी फंगल, प्रोटोजोआ करें तो एंटी प्रोटोजोअल. समझ रहे? सो इट इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स which work on a fungi cell in our body and treat your infection. एंटीबायोटिक मतलब इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाली. अब इन्फेक्शन किसी ने भी किया हो, वायरस ने किया हो या आपके बैक्टीरिया ने किया हो, फंगाई ने किया हो, प्रोटोजोआ ने किया हो, किसी ने भी किया हो, सारी क्या होगी, एंटीबायोटिक. बस उनके नाम के बेसिस पे हम लिखेंगे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोअल, अलग अलग ड्रग्स होगी. क्लियर? और किसी ने कुछ पूछा था, यही थे. मूव करें, बाकी कुछ है तो मैं अगली बार आऊंगा एक बार और राउंड है. नेक्स्ट, ठीक है, आप लोग पूछोगे नहीं ऐसे तो वैसे भी. साइड इफेक्ट, सो इट विल प्रोड्यूस फीवर एंड चिल्स. कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं. रेनल, हाँ एक क्वेश्चन कुछ पूछा वो तो बता दिया उनको मैंने वैसे, कि एम्फोटेरिसिन बी से पहले कोलेस्ट्रीन ने पढ़ा, कोलेस्ट्रीन जो है हमने लिखा कि सिस्टमिक यूज नहीं करते. सो हमेशा ध्यान रखें कि जैसे हमने आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक एक ईटी ट्यूब का टॉपिक में पढ़ाऊंगा, उसमें आएगा कि कप्ड ट्यूब इज यूज्ड इन एडल्ट एंड अनकप्ड ट्यूब इज यूज्ड इन चिल्ड्रन. इसका मीनिंग ये नहीं कि बच्चों में सिर्फ अनकप्ड यूज करते हैं, वहां पे हम कप्ड भी यूज कर सकते हैं. जब कोई वर्ड लिखा हो दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट मींस हम यूज नहीं करते. हमने लिखा नॉट यूज, मतलब वो यूज फ्रीक्वेंटली नहीं की जाती है. लेकिन एक वर्ड मैंने ये भी बोला कि जब कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके पास तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कोलेस्ट्रीन यूज कर सकते हैं. इट इज अ वेरी इफेक्टिव टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, बट साइड इफेक्ट्स प्रॉब्लम ज्यादा है. अब किसी को अगर दो ऑप्शन आपको दे दिए, एक इन्फेक्शन से मर रहा है और एक ऐसी एंटीबायोटिक लगाए जिससे वो जिंदा रह सकता है, उसके साइड इफेक्ट आएंगे पर जिंदा रह सकता है, तो आप क्या करोगे, मरने दो, साइड इफेक्ट नहीं करने में.
है या साइड इफेक्ट को हम ठीक कर लेंगे, अभी इंजेक्शन लगा दो, क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? बोलते हैं डूबते हुए को तीन का सारा वाली बात, आप डूबे हो, आपके सामने एक सांप ऐसे आके बोल रहा है पकड़ ले मुझे बच जाएगा, नहीं पकड़ोगे भाई? आप सोच रहे हो नहीं पकड़ूंगा तो भी मरूंगा, और इसको पकड़ लिया तो ये खा तो नहीं सकता है, फिर बच तो जाऊंगा कम से कम, तो फिर बचने की कोशिश ही करोगे। सो हम वही करते हैं, लास्ट ऑप्शन से कुछ नहीं है तो फिर आप इसके साथ जाएंगे, तो कोलेस्ट्रीन हम यूज करते हैं आईवी, लेकिन वो एट लास्ट, उससे पहले अगर कोई ऑप्शन से लाइक आप कल्चर कर रहे हैं, बैक्टीरियल जो ब्लड कल्चर यूरिन कल्चर किया, और कल्चर में आपने देखा कि ड्रग इज ओनली ओनली वन ड्रग व्हिच इज सेंसिटिव फॉर द पेशेंट, दैट इज कोलेस्ट्रीन, बाकी सारे ड्रग रेजिस्टेंट है, फिर क्या करोगे भाई? कोलेस्ट्रीन के अलावा कोई ड्रग अगर सेंसिटिव ही नहीं है तो आप कितनी लगा दो उसको इंपैक्ट होने वाला नहीं है, उसका इंपैक्ट कुछ भी नहीं आएगा बॉडी में, सो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? कोलेस्ट्रीन ही यूज करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्लियर? हाइपोटेंशन अगेन ड्यू टू वेसोडाइलेशन, एनीमिया बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑन योर बोन मेरो, आरबीसी का प्रोडक्शन कम कराती है, एनीमिया कोज कराती है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं पूछते इसमें से। हाँ, ये ध्यान रखना है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अभी मैंने बोला था, इट्स अ टाइप ऑफ फंगल एंटीबायोटिक, एंड दैट्स व्हाई अ फिल्टर इज गिवन विद दिस ड्रग, बिकॉज अगर आप इसको फिल्टर नहीं करेंगे तो फंगस सेल किसमें आ सकती है? लिक्विड के साथ में, और मैंने बोला इसको मिक्स करने का बहुत ज्यादा फोक बनेगा, तो वो सब कुछ आपके उसके अंदर आ जाएगा, इंजेक्शन में आप कुछ भी कर देंगे, और आप पेशेंट को क्या दे देंगे? एम्बोलिज्म या थ्रोम्बस बना देंगे, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके साथ फिल्टर दिया जाता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। These are the side effect of amphotericin B. वो करें, बिल्कुल कॉस्टली इंजेक्शन होता है, मैंने इसमें डिसोल्व कर दिया तो इन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, वेरी गुड। ये बताया था आपको भी, जो हमें कौन बता रहा है? अंजलि कहना चाह रही है कि सॉल्यूशन को आपको इस एम्फोटेरिसिन बी को किसमें डाइल्यूट नहीं करना है? नॉर्मल सलाइन में, कर दिया तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, फिर डिस्कार्ड करना पड़ेगा, पैसे बहुत लगते हैं, ठीक है? वो करें। नेक्स्ट, द नेक्स्ट, मैक्रोलाइट्स। मैक्रोलाइट्स आर आल्सो वेरी इफेक्टिव ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, एग्जांपल ऑफ मैक्रोलाइट्स आर ACE, याद है? ACE ग्रुप बताया था मैंने, azithromycin, clarithromycin, erythromycin, these are the group of antibiotic known as macrolides group of antibiotics. इन ड्रग की बात करें वन बाय वन, the macrolides are a group of antibiotics with a macrocycline lactone structure to one or more doxy sugars are attached. एक ऐसे मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होगी और इसके ऊपर कौन सा अटैच होगा? सुगर, डॉक्सी सुगर जो होता है वो अटैच रहेगा, डीऑक्सी या डॉक्सी, एंड एग्जांपल्स आर थ्री ड्रग्स, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। याद रहेगा तीन एग्जांपल, पूछ लेते हैं इसका क्वेश्चन, कभी-कभी दो तीन बार पूछा है कि कौन सी ग्रुप की एंटीबायोटिक्स एग्जांपल है मैक्रोलाइड्स का, तो आंसर लिखना है आपको। एग्जांपल्स आर जो भी तीनों में एक ड्रग है वो आंसर आप दे देंगे, और इसमें से आई थिंक एजिथ्रोमाइसिन तो आप बहुत कॉमन यूज करते हैं, एजिथ्रो नहीं करते? एजी, एजी नाम से आती है, एजिथ्रो, इट इज अ वेरी कॉमन यूज एंटीबायोटिक, जब भी इच्छा होती है तब खा लेते हो आप, एजिथ्रोमाइसिन ले लो, बट ज्यादा नहीं खानी है, नहीं तो बैक्टीरिया को पता चल जाएगा बार बार यही खाता है, इसको बंद करो, रेजिस्टेंस करो इसका, सो नेवर ओवर यूज द एंटीबायोटिक्स, क्लियर है? मूव करें। एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड द एरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन के बारे में एक स्पेसिफिक थिंग है जो आपको बतानी है अभी यहाँ पे, सबने लिया एजिथ्रोमाइसिन? चलो अभी बात करेंगे आपके इस पॉइंट के बारे में, कैसे आपने लिया है और क्या इसका काम है, सो मूव करें। एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, ACE। नेक्स्ट, mechanism of action of azithromycin, clarithromycin or macrolides. So already we discussed about this mechanism. It is a type of 50S inhibitor. Simple सा ऐसे भी लिख सकते हो आप, it is a 50S inhibitor. So the macrolides bind irreversibly to a site on the 50S subunit of the bacterial ribosome, thus inhibit the translocation step of protein synthesis. So in protein synthesis, 30S ribosome combined with 50S ribosome, and both will form a 70S ribosome, and this will be responsible for protein synthesis. यही होता है. Antibiotic macrolides bind on this 50S ribosome and block it. So there will be the formation of 70S will also blocked, and when 70S is blocked then protein synthesis will also block. So drug कैसे काम करती है? By blocking the 50S ribosome. The drug may also interfere at other steps such as transpeptidation. याद है? Transpeptidation is a process for bacterial cell wall synthesis. किसका प्रोसेस है ये? सेल वॉल सिंथेसिस में पढ़ा था हमने, पेप्टाइड चेन, when one peptide chain attaches to the another peptide chain, that process is known as transpeptidation, and the enzyme which is responsible for the transpeptidation is transpeptidase enzyme. So drug may also block the transpeptidase enzyme. क्लियर है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? क्लियर? मूव करें। सो यू शुड सरप्राइज टू सर, सर्कल आएंगे, आप उनको सरप्राइज करें, और सरप्राइज कुछ नहीं है, जाने क्यों गिफ्ट लेकर जाओ आपके लिए सरप्राइज। सरप्राइज आपके मार्क्स से होना चाहिए विथ योर रिजल्ट्स, जो इस बार आपका रिजल्ट है वो कुछ अलग दिखना चाहिए कि हम नहीं थे और इस वीक में इतने नंबर कैसे आ गए, समझ गए? करोगे, पढ़ के आना है और सरप्राइज लेकर आना, सबके 100 में से 100 होने चाहिए। लाइक आज मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें देखा था नीट जो था उसका ऑफिशियल आंसर की रिलीज किया आज, उसमें लिखा था अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 स्टूडेंट विल गेट 720 आउट ऑफ 720 नीट के रिजल्ट में आएंगे इस बार, ऐसा होगा, अभी तक का प्रोसेस से लगा है। सो जब बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते, हम तो उनसे बड़े हैं,
अरे नीट वाले तो अभी 12th पास किए हैं, हम तो उनसे क्या है, बड़े हैं, तो हमारे नंबर तो उनसे भी ज्यादा, 100 आउट ऑफ 100 ही आने चाहिए सबके। क्लियर, लाओगे? चलो देखते हैं नेक्स्ट। जो भी 100 नंबर लेके आएगा उसको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, 100 में से 100 लाएगा, लाओगे? 95, 90, अभी भी सर थोड़े तो और कम कर दो, 50 कर दो सर। सो जो भी जितने भी कैंडिडेट्स 90 प्लस या 90 या 90 प्लस नंबर लाएगा उसको आई विल, इंस्टीट्यूट की तरफ से तो जो भी होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता है, डोंट नो, क्योंकि मैं तो होता नहीं हूँ, बट आप लोगों को मेरी ओर से रिवार्ड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा, नेगेटिव नहीं, डोंट वरी। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जानते हो, नेगेटिव मतलब डंडे से मारूंगा नंबर नहीं आए तो, दैट इज नॉन एज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, और वो होता है जिनके कम आएंगे। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मींस जिनके ज्यादा आते हैं उनको मिलता है वो, और उनको कुछ मिलना, लाइक गिफ्ट मिलना, चॉकलेट मिलना, जो भी मिलना, रिवार्ड मिलना। मम्मी बोलती है जल्दी से ये बर्तन साफ कर दे फिर तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगी, वो क्या है, दैट इज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। और वही जब लड़के पाता तो मैं आऊं तब तक बर्तन साफ नहीं हुए तो डंडा देख लेना फिर तैयार है तेरे लिए, सो वो क्या है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। और जब इसको अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं पनिशमेंट, सच में मार दिया तो वो क्या है, पनिशमेंट है। सो हम यहाँ पे आपके लिए इस टेस्ट में एक रिवार्ड सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी अ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, एंड इफ यू गेट 90 और मोर देन 90%, अगर 200 का पेपर होता है तो 180 नंबर, 100 का पेपर होता है तो 90 नंबर, जितने का भी हो उसमें 90% से ज्यादा नंबर आप लाओगे तो मैं आपको रिवार्ड, आप मांग लेना, मैं दे दूंगा, नहीं दूं तो वैसे दे दूंगा, मैं भूलता नहीं हूँ, ठीक है? यस, चलो देखते हैं कितने लेके आते हैं, कितने रिवार्ड चाहिए आपको। सो एरिथ्रोमाइसिन इज destroyed by gastric acid. नाउ अब एरिथ्रोमाइसिन गैस्ट्रिक एसिड से डिस्ट्रॉय हो रही तो क्या करें बताओ, हैं? क्या करें, देंगे ही नहीं, हैं? इंजेक्शन लगा देंगे, और तो क्या करें, गैस्ट्रिक एसिड को हटा दो थोड़ी देर के लिए, टैबलेट ले तब तक हटा दो। सो एरिथ्रोमाइसिन इज अवेलेबल इन टैबलेट फॉर्म और नॉट? यस, erythromycin is available in tablet form and is more available in tablet form compared to injection, and it is widely used in tablet form, but drug is destroyed by the gastric acid, then प्रॉब्लम होगी तो। सो अगर हम टैबलेट या पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग की बात करें, सो टैबलेट जो आती है दैट विल बी अवेलेबल इन वेरियस प्रिपरेशंस। वन इज नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं नॉन कोटेड टैबलेट, नॉन कोटेड, वन इज द एंटरी कोटेड, एंड वन इज द कैप्सूल, जानते हो, capsule. So these are the three preparation available in tablet form, in oral form of the drug. One is the in solid, not in liquid, solid की बात कर रहे हैं। नॉन कोटेड, नॉन कोटेड मींस जो नॉर्मल आती है, लाइक पैरासीटामोल आप लेते हैं डिजोल्व हो जाती है, दैट इज नॉन कोटेड टैबलेट, उसमें कोई कोटिंग नहीं होती, आप उसको क्रश करेंगे तो उसका पूरी तरह से पाउडर बन जाएगा, दैट इज नॉन एज नॉन कोटेड फॉर्म ऑफ ओरल ड्रग। एंट्री कोटेड, अगर आपने कभी एनजी ट्यूब से ड्रग दिया, इफ यू गिवन द ड्रग विद एनजी ट्यूब, एंड अगर आप कभी देखा होगा कुछ ड्रग्स, कुछ देयर आर फ्यू टैबलेट्स, आफ्टर क्रशिंग द टैबलेट स्टिल देयर आर फ्यू लिप लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे कागज के टुकड़े जैसे आपको मिलेंगे, एंड दे विल ऑब्स्ट्रक्ट योर एनजी ट्यूब और योर बेग वेरी फ्रीक्वेंटली, आप उसको डालेंगे बेग को ब्लॉक कर देते हैं, देखा है? सो दैट इज जो आप देखते हो वो क्या होता है, टैबलेट के ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज अ कवरिंग ऑफ द टैबलेट, एंड उस कवरिंग का पर्पस क्या है, that cover is not destroyed by the gastric acid, that cover is only destroyed by the base or alkaline medium. So when drug reach in the gastric acid, drug will not dissolve, when drug reach in your intestine and in your basic medium, then drug will dissolve and they will start working in your body. So erythromycin is a type of gastric acid destroying drug, जो gastric acid है उसको destroy कर देता है। So हम इस टेबलेट को कैसे बनाएंगे, एंटरिक कोटेड टेबलेट फॉर्म में आपको मिलेगी। सो दस एंटरिक कोटेड फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड। सो अब एंटीबायोटिक्स में आपसे पूछा एंट्री कोटेड तो बता सकते हैं, लाइक इसका एक और क्वेश्चन था कैप्सूल का, कि एक पेशेंट जो है कैप्सूल लेने से मना कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता है कैप्सूल, तो अब आप क्या करोगे, निकाल के पानी में डाल के पिला दो, है उसके मुंह में ऐसे स्प्रिंकल कर दो, खोल के पानी पिला दो, फिर क्रश करके खिला दो, क्या करोगे, क्या करोगे? सो कैप्सूल should be given in capsule form only, because the capsule is a type of covering which protecting the drug from gastric acid, and that's why capsule should be given in capsule form. If patient is refusing to take the capsule, then go for the injection form of drug or any other drug, दूसरी ब्रांड या दूसरा कंटेंट आपको देखना है, उस ड्रग को आप ओपन करके नहीं देंगे, नहीं तो ड्रग इफेक्टिव नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, clarithromycin and azithromycin are stable to stomach acid and are readily absorbable. So azithromycin and clarithromycin are available in non-coated form, but erythromycin is available in enteric coated form. Enteric means GIT. So GIT से बचाने के लिए, gastric acid से बचाने के लिए कोटिंग करते हैं, that is enteric coated form. So three drugs तीनों का याद रखना है, non-coated and coated, याद रहेगा? वो करें कोटिंग, देखा, ये तो बहुत कॉमन फील होता है जब आप हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं तब ये चीजें आपके सामने आती है, और हम सोचते हैं पता नहीं कचरा कहाँ से आता है, हमेशा पानी में था होगा, मिल्क में डाल दिया होगा इन्होंने, कुछ फीड में डाल दिया होगा, यही सोचते हैं। और हम जो होते हैं वो सारी टेबलेटों को एक ही साथ क्रश करते हैं, सुबह 8 बजे वाली, 10 बजे वाली, 12 बजे वाली, 2 बजे वाली, इतनी बार कौन देगा, एक साथ ऐसे किया, साथ में पॉटक्लोर सिरप थी वो भी मिलाई, ऐसा जूस बनाते हैं, पेशेंट सोचता है आज तो मजे आ गए, सारे जूस मिक्स कर दिया, देखा है? When the patient is having oral feed, feed is given, oral मतलब NG feed, every 2 hourly, 200 ml will be given in 2 hour, हर 2 घंटे में आएगा। So you will collect all the feed, 8 बजे वाला भी पड़ा है, 10 बजे वाला भी पड़ा है, 12 बजे वाला भी पड़ा है, और 2 बजे वाला तो हम पिलाएंगे नहीं, वो तो अगले वाला पिलाएगा। So all three feed is collected by you, you mix all feed in है, और जो फीडिंग बैग होता है उसमें डालेंगे, सारी ड्रग उसमें डालेंगे, जो देना है सब कुछ, और उसको एक ही साथ दे देंगे पेशेंट को, बोलेंगे सो जा, हो गया आज का काम। So ऐसा कभी नहीं करना है, always give feed with interval of 2 hours, because your residual volume should be less than 100 ml. If you are giving 600 ml
द फ्लूइड जो आपका फीड है वो, तो अगला फीड जब 2 बजे आएगा तब उसका 200 जो 600 ml है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसका अंदर ही पड़ा रहेगा, और रेजिडुअल वॉल्यूम देखोगे तो 100 ml से ज्यादा होगा, तो आपको सारी फीड को स्किप करना पड़ेगा बाद में। इसीलिए डिवाइडेड डोज में आपको प्रोवाइड करना है, एवरी 2 आवर मींस 2 आवर पे ही देना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। यस, चले आगे। नेक्स्ट, सो अगर हम बात करें यहाँ पे, फूड इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन बट कैन इंक्रीज, ओके आपसे जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था वो, एजिथ्रोमाइसिन सबने लिया है एजी 500 mg ओडी, ऐसे ही होता है एजी 500 mg ओडी। सो एजिथ्रोमाइसिन कब लेते हैं? आफ्टर मील और बिफोर मील? आफ्टर मील द एजिथ्रोमाइसिन शुड टेक आफ्टर मील। ओके, कितनी बार लेते हैं दिन में? ये तो मैंने लिखा है, आपको बताना है आपने कितनी बार लिया है, कितनी बार लिया है, कितने दिन तक मिनिमम लेते हैं, और ये सब बताने के लिए आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रिप जो होती है उसमें 3 ही टैबलेट आती है, 3 आती है, देखा होगा 3 टैबलेट का ही आता है, बहुत कॉस्टली होता है, पैसे भी बहुत लगते हैं, आप ज्यादा लोगे भी नहीं, क्योंकि पता है कि ज्यादा लेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, देखे कि बहुत है। द प्रॉब्लम इज दैट कि स्टिल द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव, आप 3 दिन तक ले भी लोगे तो भी आप ठीक नहीं होते हो। बहुत बार ये देखा होगा, फील किया होगा कि आई टेक ऑन दैट ड्रग व्हिच इज रेट विद 250 और 300 रुपीस, 100 रुपए की एक टैबलेट खा गई, 3 दिन हो गए, अभी तक ठीक नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द जो आपका मेथड है वो रॉन्ग है, गलत है। When you are taking azithromycin, you should take the azithromycin in empty stomach. It is only the antibiotic which should be taken in empty stomach, because if you are taking after meal, the absorption of the azithromycin will reduce. Absorption क्या होगा? कम हो जाएगा, और absorption नहीं होगा तो ड्रग बॉडी में इफेक्टिव नहीं रहेगी। So वही लाइन यहाँ लिखी हुई है, food interfere with the absorption of erythromycin and azithromycin, but can increase that of clarithromycin. If you are taking clarithromycin, take after meal, but if you are taking azithromycin and erythromycin, should take in empty stomach. It will be more effective. Clear? याद रहेगा? Next. Intravenous administration of erythromycin is associated with a high incidence of thrombophlebitis. So ये common side effect है इस ड्रग का, erythromycin का. If you are using this drug as an injection form, it will be very well known for their thrombophlebitis effect. Thrombophlebitis जानते हो आप लोग? पूछ लें किसी से, कौन कौन नहीं जानता है? सर हमें तो नहीं पता इसका मीनिंग, सब जानते हैं, अभी खड़ा करेंगे तो कोई बताएगा नहीं, मीन्स यू आर जस्ट हाइडिंग योर नॉलेज। अगर मैं पूछता हूँ आप नहीं बताते हो, आप जानते हो फिर भी बताते नहीं हो। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ओके, इसको अलग अलग कर देते हैं, थ्रोम्बस एंड फ्लेबाइटिस, और इसके साथ में एक और ऐड कर देता हूँ, फिर पूछता हूँ। एक होता है थ्रोम्बस, एक होता है एम्बोलाई, दोनों मिल जाते हैं और फिर डेथ हो जाती है। अब पूछे किस किस को नहीं पता दोनों का मीनिंग? फिर भी कोई नहीं बताएगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, उनको नहीं पूछूंगा जो बोलेंगे सर नहीं पता है। अब तो फिर पूछ, मैं नहीं पूछना चाहता, फिर पूछना ही पड़ेगा। चलो अभी आगे वाले बहुत बता दिए, पीछे वालों की आवाज नहीं आती इसलिए नहीं पूछता उनसे मैं, मगर अब सब बताएंगे, आज सबको आता है। हाँ जी बताओ भाई। यस लास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रोम्बस? है क्या ना, क्या फॉर्मेशन होना? तो व्हाट इज थ्रोम्बस फॉर्मेशन, वही तो पूछ रहा हूँ। क्लॉट फॉर्मेशन, और एम्बोलाई एयर फॉर्मेशन हो जाना, दैट इज एम्बोलाई। ओके, बाकी एम्बोलाई नहीं बनता है। एक यहाँ एक आईवी कितना लगाया आपने, उसका आगे का क्लिप टूट गया प्लास्टिक का, वो वेसल्स में घूम रहा है इधर, क्या बना? थ्रोम्बस बना, एम्बोलाई बना? क्या मतलब, एयर तो है ही नहीं, तो प्लास्टिक का पार्ट है, क्या होगा वो? होता है, ऐसा हो सकता है, होता है ना, बहुत बार हो जाता है। चलो बैठ जाओ। यस बताओ भाई। यस पता है, हाँ आपको तो पहले पूछा ही है मैंने। हाँ बताओ आप आगे। व्हाट इज थ्रोम्बस एंड एम्बोलाई? ओके, और एम्बोलाई इज मूवेबल, ओके मूवेबल थिंग इज द एम्बोलाई। ओके सिट डाउन, बैठ जाइए। यस इधर से, हाँ बताओ भाई, सामने इधर, इधर देखेंगे नहीं मेरी तरफ, इधर आपके आगे, आपके आगे। हाँ बताओ, व्हाट इज एम्बोलाई और व्हाट इज थ्रोम्बस? है क्लॉट बनना, वो क्या है? कौन सा वाला, ऊपर वाला नीचे वाला क्लॉट? ऊपर वाला थ्रोम्बस, और एम्बोलाई है वो नहीं पता। एम्बोलाई क्या होता है? हैं एम्बोलाई में क्लॉट बन जाता है, एयर होती है, एयर बोल रहे हो? अरे वो तो कोई नहीं बताएंगे, वो क्यों बताएंगे, आप ही को बताना है, आप क्या जानते हो? देखो ये तो कितना बेसिक बेसिक चीजें होती है। आपने एक पेशेंट को कैनुला लगाया, आईवी कैनुला लगाया, कैनुला लगाते टाइम ऐसे पंक्चर किया, कैथेटर को पंक्चर हो गया, अंदर कैथेटर होता है प्लास्टिक का कैनुला के ऊपर, और वो आगे का टिप टूट गया, वो ब्लड वेसल्स में से घूम रहा है, क्या बना? थ्रोम्बस बना, एम्बोलाई बना? है हो सकता है ना ऐसा, क्या बना बताओ? नहीं पता, बैठ जाओ। नेक्स्ट, हाँ जी कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? व्हाट इज थ्रोम्बस एंड एम्बोलाई? बताओ, अरे हंसना नहीं है, आंसर देना है। व्हाट इज थ्रोम्बस? है क्लॉट फॉर्मेशन, एंड व्हाट इज एम्बोलाई? नहीं पता, मैंने आंसर बता दिया उनको, अब कौन बताएगा आपको? हु विल टेल यू? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन देम, हु विल टोल्ड यू? आपको कौन बताएगा एम्बोलाई? अब शुड आई रिपीट अगेन? यस, तो बाकी सब जाएंगे फिर हर बार वही रिपीट करें? मैंने मना किया ना क्लास से बाहर जाने के लिए, मैं पीछे जा रहा हूँ इसका मतलब आप आगे से क्लास से बाहर जाओ, हैं? वेट कर सकते हैं, अभी तो थोड़ा टाइम और है।
बेटा है, आप लोग कितनी बार समझाए हैं? मैं भी पूछता हूँ तो नहीं पूछते, मैं उधर जाता हूँ ये इधर भाग जाते हैं, इधर गार्ड बिठा दें, गार्ड रखे यार, छोटे बच्चे को पकड़ के रखना पड़ता है, बांधना पड़ता है, कितनी बार समझाते हैं, मीनिंग आपको पता ही नहीं है, आप उधर घूम रहे हो, हैं आंसर पूछ रहे हैं बता नहीं रहे हो। हाँ बताओ, व्हाट इज थ्रोम्बस एंड एम्बोलाई, बताओ। अरे डोंट लाफ एंड गिव द आंसर, व्हाट इज द थ्रोम्बस एंड एम्बोलाई, बताओ, आई एम नॉट टेलिंग एनी जॉक्स। नहीं पता, अब इनको बता दिया, कौन बताएगा आपको, उनसे पूछो बता देंगे आपको घर पे, दे विल एक्सप्लेन यू, बताओ। अगर वो समझा सकते हैं तो फिर आप रोज आराम से रहो, रोज आके बता देंगे आपको, है मना किया ना मैंने, कितनी बार मना किया क्लास में, है बोतल भरना था तो मेरे चले जाते, बोतल पानी पीना था, है आप बैठो बैठ, हाँ आपका आपका नंबर आएगा अभी, व्हाट इज थ्रोम्बस एंड एम्बोलाई, इसका आंसर देना है, देखो कितनों को डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, 3 पर्सन को डिस्टर्ब करके, व्हाट इज थ्रोम्बस एंड एम्बोलाई, हाँ और एम्बोलाई ट्रेवल कर सकता है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं पता है क्या बोल रहे हो, डीवीटी, वो तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बस होता है, ट्रेवल करके कहाँ जाते हैं वो तो थ्रोम्बस है ना, नाम ही डीवीटी है, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। मैंने एक एग्जांपल पूछा था, आपने कैनुला लगाया, कैनुला लगाने के बाद उसका टिप टूट गया तो क्या बना, है एम्बोलाई बना, थ्रोम्बस नहीं बना, है बैठ जाओ। सो ये तो छोटी सी बातें हैं, थ्रोम्बस और एम्बोलाई, एक तो आपका कॉन्सेप्ट जो है उसको आप माइंड से हटा दो, क्लॉट और एयर को, आप लोग सोचते हैं कि क्लॉट बना तो क्या बना, थ्रोम्बस और एयर आई तो क्या है एम्बोलाई, वो गलत कॉन्सेप्ट है, उसको अपने माइंड से निकाल दो। यस, थ्रोम्बस का मीनिंग जो अपन बात करते हैं यहाँ पे, वैसे ये आपको सर पढ़ाएंगे बाकी कार्डिक सिस्टम में, एम्बोलाई, थ्रोम्बस मींस any type of thing which is developed as well as blocked at a same site, that is known as thrombus, जो एक ही पार्ट पे डेवलप हो रहा है और उसी पार्ट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी सेम साइट को, दैट इज नोन एज थ्रोम्बस। एंड ऐसा सिर्फ एक ही हो सकता है, जो हमारा ब्लड सेल्स है वो डिपॉजिट हो जाए एक ही पार्ट पे, जम जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस होना या ब्लड सेल्स का डिपॉजिट होना एक ही पार्ट पर, उसको ब्लॉक कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। इट इज नॉन मूवेबल, क्योंकि एक ही पार्ट पे डेवलप हो रहा है एंड एक ही पार्ट पे क्या हो रहा है, आपको इंपैक्ट कर रहा है, तो ये क्या होता है, नॉन मूवेबल। एम्बोलाई, फर्स्ट थिंग, डेवलप एट वन साइट एंड ब्लॉक एट अदर साइट, यहाँ पे डेवलप हुआ, ये यहाँ से टूट गया ऐसे, and now this molecule started moving in your body and maybe it reached to the pulmonary artery and block it, and person will die due to the respiratory failure or cardiac arrest, heart में गया तो cardiac arrest कर दिया। So this movable particles, this movable particle is known as emboli. It may be a blood clot which is moving in your blood vessel, it may be an air which is moving in your blood vessel, it may be any catheter part which is moving in your blood vessels, all the moving component which is not normal. A blood cell is a normal component of our blood, that's why blood cell is not emboli, but a clot, a catheter part, or a like this non-movable thing detaches from a site and moving in your blood, these all things are not the normal thing, these are an abnormal thing which moving in your blood, these all things are known as emboli. So which one is more dangerous, even thrombus is also dangerous, but normally thrombus will not form in your major vessels, major vessels में thrombus जो है easily नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे blood का flow बहुत high है, but emboli can stuck in your major vessels like in your brain, in your heart, in your respiratory system, the emboli will stuck and they will cause failure of that system. जो DVT की हम बात कर रहे हैं, so DVT जो बना वो क्या है, thrombus है, but due to like after formation of DVT, if you are using heparin or if you are using compression stockings or if you are using the DVT pump after development, then it may be chances it will break out from the site and it move slowly and it may cause in pulmonary system, in cardiac system, that is known as emboli. Clear? So thrombus is a non-movable and emboli is a movable thing in your system, circulatory system. Clear? Yes. Only not the air. Anything which is moving, which is abnormal, that whole thing is known as emboli. Next, pharmacokinetic of macrolides. So erythromycin distributed well to all body fluids except the CSF. So if somebody asks you, erythromycin is given to the pregnant female or not? क्या erythromycin हम pregnancy में दे सकते हैं या नहीं देंगे? Yes. दे सकते हैं नहीं दे सकते? अरे we will provide those drug which not cross the your placental barrier. आप वो ड्रग नहीं देते जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है, like heparin and warfarin. Warfarin can cross the blood-brain barrier or placental barrier, but heparin does not cross the placental barrier. So we will provide heparin in pregnancy, but we will not provide warfarin. As like erythromycin does not cross the blood-brain barrier, and if it is not crossing the blood-brain barrier, it means it also not cross the placental barrier. So we can give the erythromycin to the pregnant female. वो ये cross करके बच्चे में नहीं जाएगा. It will not reach to the fetus. Next, erythromycin and azithromycin are primarily concentrated and excreted in the active form in the
bile. So primary excretion is through the non-renal route, non-renal route, and that's why this drug can be used in a patient with renal failure. A patient is suffering with renal failure. The safe antibiotics are azithromycin and erythromycin, but clarithromycin and its metabolites are eliminated by the kidney as well as liver. So we will try to avoid clarithromycin in renal failure, but we can give erythromycin and azithromycin in renal failure patient. Yeah. Yes. Move करें. देख लिया. हमने जनवरी में भी बेस स्टार्ट किया था आई थिंक. क्या? सो जब आप जनवरी में आए थे तब मैंने क्या स्टार्ट किया था आपके? रेनल एंड देन रेनल के बाद इमरजेंसी एंड देन सोशियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी. मींस 4 सिस्टम पढ़ाए आपको मैंने अभी. सो रेनल के बाद मेरे पास नर्वस सिस्टम एक और है ना. नर्वस एंड जेनेटिक्स तो अदर में आता है, छोटे मोटे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ा दूंगा मैं कुछ. हाँ ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी कौन पढ़ाएगा? मैं ही पढ़ाऊंगा. ऑन्कोलॉजी बिल्कुल. तो दोनों पे हम बात करेंगे. वेरी सून वी विल स्टार्ट विद नर्वस और मे बी ऑन्कोलॉजी. जब भी आपसे मुलाकात होगी, जब ये अक्टूबर वाले चले जाएंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा. यस. नेक्स्ट. साइड इफेक्ट्स ऑफ मैक्रोलाइड्स. सो मैक्रोलाइड ड्रग्स आर प्रोड्यूस कॉमन साइड इफेक्ट नोजिया वोमिटिंग डायरिया कोलेस्टेटिक जॉन्डिस. व्हाट इज कोलेस्टेटिक जॉन्डिस? क्या होता है? व्हाट इज कोलेस्टेटिक जॉन्डिस? आप लोग कुछ भी नहीं बताते, कभी कोई हेल्प नहीं करते हो. कभी तो कुछ हेल्प किया करोगे सर, ये होता है. मुझे तो ऐसा लगता है आप लोग ने सर वर्ड ही सर आज ही सुना. हमने तो ये नाम ही पता नहीं, पहली बार ही आया है नर्सिंग में कि हमने कभी नहीं सुना सर. है नहीं सुना पहले कभी? क्या होता है? क्या होता है? जॉन्डिस हो जाता है लीवर में, उसको बोलते हैं कोलेस्टेटिक जॉन्डिस. क्या होता है कोलेस्टेटिक जॉन्डिस? है देखो इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है. बस इसका टर्म जो लिखा है ना वो थोड़ा डिफरेंट कुछ लिखा हुआ है और उससे आप कंफ्यूज हो रहे हो. बस एग्जाम में यही प्रॉब्लम होती है. क्या होता है बताओ? जॉन्डिस पढ़ा है? जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस क्या होता है? सर अभी यही नहीं पढ़ा. आप जॉन्डिस पे आने दो हमें. हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन, दैट नॉन एज जॉन्डिस. वेरी गुड. हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इज नॉन एज हाइपर बिलिरुबिनेमिया, नॉट जॉन्डिस. है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने से जॉन्डिस हो गया है? क्या करें अब? व्हाट इज जॉन्डिस? देख लो अब आप क्या करें. दैट इज द कोज. इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन causes the jaundice. But what is jaundice? वो भी तो आपको पता होना चाहिए. येलो डिस्कलरेशन होना, that is the jaundice. Very good. That is the sign of jaundice. That is sign of jaundice. तो कल jaundice क्या होता है सिर्फ देखिए, मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि पूरा पढ़ना. सिर्फ ये पढ़ जाना कि jaundice क्या होता है और फिर पढ़ना क्या है कोलेस्टेटिक jaundice क्या होता है. ठीक है? समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा. बट कोशिश करना एक बार घर जाके ईमानदारी से. मैं 5:30 बजे क्लास लूंगा तब बताऊंगा बात. ठीक है? नेक्स्ट. ऑटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू डैमेज ऑफ ectocranial nerve and it is contraindicated in liver failure because all three drugs are excreted through the bile. अभी बताया था azithromycin, erythromycin and clarithromycin. All three drugs are excreted through the liver bile के through out होती है, and that's why the drugs should not be given in case of liver failure. But drug can be given in renal failure patient क्योंकि वहां पे drug kidney से out नहीं हो रही है. क्लियर? मूव करें. क्लियर? मूव करें. आप लोगों से ज्यादा तो ऑनलाइन वाले आंसर देते हैं. वो देखो उन्होंने सबने आंसर लिख भी दिया वहां पे, मैं बताऊंगा नहीं अभी. यस. नेक्स्ट. कल पढ़ के आना क्या होता है. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट इज लिनेजोलिड. सो लिनेजोलिड बहुत आपने यूज करी होगी आई थिंक इसको. लिनेजोलिड इज अ सिंथेटिक oxazolidine. Linezolid was introduced to resistance as amoxicillin and vancomycin resistant Staphylococcus aureus and penicillin
टाइप के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा। नेल में इन्फेक्शन हो गया, कैंडिडाइसिस हो गया, या ओरल इन्फेक्शन, ओरल थ्रस्ट हो गया, या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, फंगल मेनिंजाइटिस, कोई भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, सबसे इफेक्टिव ड्रग फ्लूकोनाजोल। इट इज अवेलेबल इन ओरल एज वेल एज आईवी। आईवी 100 ml बोतल आपको मिलता है इसका, और ओरल टैबलेट फॉर्म इसका मिलता है, 400 mg टैबलेट आता है इसका। सो दैट वी विल यूज इन द फंगल इन्फेक्शन। मूव करें नेक्स्ट। फ्लूकोनाजोल लास्ट ड्रग जो हमारे पास है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में जब हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ा था। 4 ड्रग बताई थी मैंने, सल्फाडाइजिन, टैप्सोन, सल्फासेलेजाइन एंड पेरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। 4 ड्रग है, वो आती है सल्फोना ग्रुप में। और सल्फा इज अ केमिकल जो इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको हम सल्फोनामाइड बोलते हैं। इट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव एंटीबायोटिक, जिसकी हम बात करेंगे। ये लिख लिया, मूव कर दें। सो टाइम नहीं है इतना लिखने के लिए। सो मैं वेडनेसडे को आपका फार्मा कंप्लीट कर दूंगा, और फिर उसके बाद हम मुलाकात करेंगे अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 1 मंथ। हाँ, नीचे तो मैं डेली आऊंगा, पर इधर आपकी क्लास जो है मोस्टली 1 महीने बाद मेरी क्लास आएगी। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ें और 4 टेस्ट दे चुके होंगे, तब तक आपके नंबर 400% बढ़ जाने चाहिए। और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका नया सिस्टम, नर्वस सिस्टम और ऑन्कोलॉजी, जो मैं कंप्लीट करूंगा बहुत ही जल्दी। लिख लिया यहाँ तक, मूव करें नेक्स्ट। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फ्लूकोनाजोल। सो देयर आर फ्यू एडवर्स इफेक्ट जो आपने पहले भी देखे। P450 ब्लॉक होगा तो क्या साइड इफेक्ट आएंगे? देयर विल बी अ चांस ऑफ ब्लीडिंग एंड सीजर्स। और क्यों आएंगे, क्लियर है। द नेक्स्ट, इट इज नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर बिकॉज ऑफ ड्रग कैन क्रॉस द प्लेसेंटल वेरियर। अभी बताया था सीएसएफ में जा सकती है, तो प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी में भी जा सकती है, और बच्चे के अंदर ये हार्मफुल इंपैक्ट करेगी। सो दीस आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस फ्लूकोनाजोल। लिख लिया। So fluconazole is not recommended in pregnant female and lactating mother because drug easily cross the blood-brain barrier or the placental barrier. Next, yeah. Next, uses. So vaginal candidiasis, oropharyngeal candidiasis, meningitis, all type of fungal infection in the body, we can use the fluconazole very effectively. But in case of pregnancy or lactating mother, you should avoid this drug. Move करें. Now, if you have any doubt, you can ask. Otherwise, we will move on the next drug, that is sulfonamide. No doubt. कोई डाउट नहीं होता, कभी नहीं होता आज तक। कभी भी पूछ लो आप सर हमसे, कुछ भी पूछ लो आप, अभी बता देंगे हम सर पेनिसिलिन क्या है। मैं पूछ लूं? नो डाउट। हाँ बताओ भाई, आप पूछो। एनजी ट्यूब लगा रखी है उसको? हाँ हाँ, कैप्सूल देना है, कैसे देंगे उसको? सो वही मैंने आपको बोला, बैठ जाओ, वही मैंने आपको बोला था कि whenever we are giving drugs to the patient, capsule should be given in capsule form only. There is no other option, and that's why when we are giving drugs with NG tube, that patient receive like capsule जो हम बात करते हैं like gastric जो capsules आते हैं like antacid जो आता है pantoprazole, rabeprazole. So we will give injection to the patient. अगर कैप्सूल आप एनजी ट्यूब के साथ, अगर आपने कभी काम किया हॉस्पिटल में, तो आपने देखा होगा आज दिन तक किसी भी कैप्सूल को एनजी ट्यूब से नहीं दिया गया, ना ही उसको क्रश करना है, ना ही कुछ। अरे थोड़ा वेट करो भाई, पूरा होने दो पहले, वेट क्या करो थोड़ा, नहीं देते। सेकंड थिंग, व्हेन वी आर गिविंग कैप्सूल फॉर्म ऑफ द ड्रग टू द पेशेंट, कैप्सूल के 2 पर्पस होते हैं। अगर आप, अभी मैं ड्रग के बारे में पढ़ाऊंगा पूरा आगे, और एक होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और एक होती है एक्सटेंडेड और प्रोलॉन्ग्ड रिलीज ड्रग। सुना है वर्ड नाम एक्सटेंडेड और प्रोलॉन्ग्ड ड्रग्स? सो उसका मीनिंग ये है कि एक ड्रग तो आप जैसे ही लोगे, डिजो लोगे और अपना इफेक्ट दिखा देगी, और एक होती है एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग, वो आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा अमाउंट रिलीज करती रहेगी और क्या करेगी, अपना इफेक्ट दिखाएगी। सो जो हम एनजी ट्यूब से प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अगर आप डायरेक्टली निकाल के ओपन करके डाल देंगे, तो उसका इफेक्ट तुरंत आ जाएगा, वो लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो जो गैस्ट्रिक एसिड के कैप्सूल है, बेसिकली हमारा गैस्ट्रिक एसिड के कैप्सूल को देना किसके लिए है? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और एसिड कहां होता है? स्टमक में, तो वो काम वही करेगा, स्टमक में ही एसिड में ही काम करना है, बट वो प्रोलॉन्ग्ड रिलीज कैप्सूल है, लंबे टाइम तक इंपैक्ट लाने के लिए कैप्सूल है। तो वहां पे आप कैप्सूल को निकाल के देंगे तो उसी टाइम इंपैक्ट होगा, फिर खत्म हो जाएगा उसका इफेक्ट। लॉन्ग टाइम इफेक्ट नहीं आएगा जब आप एनजी से देंगे, बट इफेक्ट आएगा, तुरंत एंड हो जाएगा। क्लियर? सो दो ही ऑप्शन है, या तो आप क्या दे, इंजेक्शन फॉर्म दे अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए तो, अदरवाइज इंपैक्ट अगर आप एनजी ट्यूब से देंगे तो तुरंत उसका आएगा और खत्म हो जाएगा, वो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट नहीं देगा। कभी रेपर जो आता है उसको पढ़ना, टैबलेट जो आती है उस पे देखना, लाइक आप डायबिटीज ड्रग लेने जाएंगे मेटफॉर्मिन, तो मेटफॉर्मिन के अंदर सस्टेन रिलीज, एक्सटेंड रिलीज, वेरी एक्सटेंडेड रिलीज, अलग अलग फॉर्म्स आती है, वो क्या है, और अगर कोटिंग करते हैं, जैसे कुछ ड्रग जल्दी रिजोल्व हो जाती है, कुछ ड्रग थोड़ी लेट होती है, कुछ ड्रग और लेट होती है, उससे इंपैक्ट उसका बढ़ जाता है। सो उसी को आप कम या ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, sulfonamide. So we'll discuss about the sulfonamide, clindamycin and metronidazole in the next class tomorrow by 5:30 p.m. Thank you.